سرائے عالمگیر سے ناصر محمود رپورٹ کریں گے۔ نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او گجرات سید اسد مظفر نے ڈی پی او کمپلیکس میں تعارفی میٹنگ کی، جس میں ایس پی انویسٹیگیشن ریاض احمد، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور ہیڈ آف برانچز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او گجرات نے کہا، قبضہ مافیا، ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کلچر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جس کا رزق حلال نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ انہوں نے مزید کہا، شہریوں کو انصاف اور تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ قانونی کارروائی بلا تفریق ہوگی، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا۔ انصاف میں رکاوٹ اور محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والے آفیسرز کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ تمام آفیسرز شہریوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کریں۔ آپ کا کام بولنا چاہیے۔ تھانوں میں ہر انسان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تمام پولیس آفیسرز اور ملازمین عوامی خدمت اور دیانتداری کو اپنا شعار بنائیں۔ ٹیم ورک اور محنت سے ضلع کو امن و امان کا گہوارہ بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ شجاع آباد سے زہتاج رپورٹ کریں گے۔ شجاع آباد شہر کے مرکزی قبرستان نور شاہ کی مین گلی عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اسٹریٹ لائٹس کا ناقص نظام ہونے کے باعث جنازہ لے کر آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہر کے عوامی اور سماجی حلقوں کا کمشنر ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر فیاض جتالہ سے مرکزی قبرستان نور شاہ کی مین گلی تعمیر کروانے اور اسٹریٹ لائٹس لگوانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں، دھمیال پولیس کی مؤثر کارروائی، طلبہ کو نشے کی لت لگانے والی لیڈی منشیات اسمگلر گرفتار، 1 کلو 50 گرام آئس برآمد۔ ملزمہ طالبہ کو اپنے گھر بلا کر آئس کا نشہ کرواتی تھی۔ ملزمہ اپنے گھر سے ہی آئس فروخت کرتی اور تعلیمی اداروں میں سپلائی بھی کرتی تھی۔ منشیات اسمگلر کی شناخت نسیم بی بی کے نام سے ہوئی۔ ملزمہ کے ساتھی فیصل سے بھی 1500 گرام چرس برآمد ہوئی ہے، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے چالان عدالت کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئس ڈیلر کی گرفتاری اور آئس کی برآمدگی پر سی پی او سید خالد حمدانی کی ایس پی صدر، اے ایس پی صدر اور دھمیال پولیس کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق راولپنڈی پولیس منشیات کو ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ الیکشن ہو جائیں اور اسلامی کی تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اب جو سیاست تھی یا اہم لوگ بائیکاٹ کرتے تھے، اس کو ہم نے ختم کیا۔ حالانکہ وہ بھی سارے کام کر کے اب جماعت میں اس کو فیصلہ کیا کہ اب ہر سیٹ پر جو ہے وہ الیکشن لڑا جائے گا اور کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، اپنے نشان پر جو ہے وہ الیکشن کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کا نشان ہے تو ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک بہت ہی ہوپ فل امید ہے۔ لوگ ابھی تمام جماعتوں کو دیش کرتے ہیں اور اس طرف آئیں گے۔ جماعت اسلامی نے ان 75 سالوں میں اقتدار نہ ہوتے ہوئے لوگوں کی خدمت کی۔ پوری دنیا کے اندر لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی خدمت کے اندر جو مثال قائم کر رہی ہے اس کی مثال نہیں۔ جو بھی قیادت ہے، کارکنان کا کوئی بندہ ہے جو تیار نہیں، اور جہاں جہاں کبھی قوم نے ہمیں موقع دیا ہم اپنی خدمت کریں گے۔ جماعت اسلامی کا پورا امتیاز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم کو واپسی کے لیے اس موجودہ انتخابات کے اندر بہتر کارکردگی دکھانی ہوگی۔ احمد پور شرقیہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ایم این اے مختوم سید علی حسن گیلانی اور ایم پی اے کے امیدوار میاں رافت الرحمان سیال نے اپنی الیکشن کمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ احمد پور شرقیہ کے شہریوں نے مختوم سید علی حسن گیلانی کا بھرپور استقبال کر کے ثابت کیا دونوں امیدواروں کی پوزیشن اپنے مخالفوں سے بہت بہتر ہے۔ اس موقع پر سابق کونسلر حاجی محمد صدیق محمد ارشد نانی والے نے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ جمن تاجران کے عہدیداران نے بھی امیدواروں کو اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میاں بلیغ الرحمان، محمد خالد چوہان، وائس پریزیڈنٹ پی 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 حذیفہ قریشی، سابق کونسلر شیخ قاسم علی رضا باجوہ، عمر خالد، ڈاکٹر محمد رمضان، ملک چاند، سابق کونسلر سنی کریم خان، میاں ابرار چاند شامل تھے۔ حفیظ اللہ کی میانوالی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ میانوالی میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع بھر کے اسپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے تینوں تحصیلوں کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا فرداً جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ گراں فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی، اس لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فیلڈ میں جا کر مارکیٹس، دکانوں کی انسپیکشن کریں اور اشیاء خورنوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنائیں۔ چشتیاں تھانہ سٹی اے ڈویژن پولیس کی بڑی کارروائی، 5 ملزمان کو 20 من بھنگ اسمگل کرتے ہوئے پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ مقدمہ درج، چشتیاں تھانہ سی
सिटी SHO अमजद इकबाल बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को मनशियात समेत गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद कहा, जब से थाना सिटी SHO तैनात हुआ हूँ, जो टास्क दिया उसे बाखूबी सर अंजाम दिया और मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी रखूंगा। अवाम की जानो माल की हिफाजत हमारा फरीजा है। मनशियात समेत दीगर जराइम पेशा अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से फियाज हुसैन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्नौर जिला इंतजामिया महकमा माहौलियात की इंसदाद स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी। धुआं छोड़ने वाले भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन। जिला भर में माहौल को आलूदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की जानिब से ऐसा कहा गया। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने और धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। महकमा माहौलियात की टीमें जिले भर में ईंटों के भट्टों और इंडस्ट्रीज की इंस्पेक्शंस का अमल जारी रखे हुए हैं। जिला भर में अब तक टोटल 109 भट्टों और 43 इंडस्ट्री को विजिट किया गया। जिगजैग टेक्नोलॉजी न अपनाने वाले 32 भट्टों को सील किया गया। 22 भट्टा मालिकान और 9 फैक्ट्रियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। भट्टा मालिकान को 42 लाख जबकि फैक्ट्रियों के मालिकान को 6 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। स्मोक के तदारुक के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। फसलों की बकायात जलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। माहौल को आलूदा करके स्मोक का बायस बनने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। पाकपतन से सैयद मखदूम हुसैन नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया महर की हिदायत पर जहां गैर कानूनी और गैर मयारी या पैमाना कम रखकर पेट्रोल सील करने वाले मालिकान को भारी जुर्माने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं रेट चेकिंग मॉनिटरिंग पर अमल दरामद करते हुए सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद अशरफ ने सब्जी और फ्रूट फरोशों की शॉप्स के साथ साथ ब्रॉयलर का गोश्त बेचने वालों की रेट लिस्ट चेक की। इस मौका पर मोहम्मद अशरफ सिविल डिफेंस ऑफिसर पाकपतन ने बगैर रेट लिस्ट और बासी सब्जी फ्रूट और नाकिस गोश्त बेचने वाले दुकानदारों को जुर्माना करने के अलावा उनका गैर मयारी सौदा भी ज़ाया करवा दिया। अडयाला रोड गोरखपुर सड़क किनारे मशकूक बैग बम डिस्पोजल स्क्वाड्स के तहवील में ले लिया गया। मशकूक बैग में मशकूक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मशकूक डिवाइस कब्जे में ले ली। बम डिस्पोजल स्क्वाड मशकूक डिवाइस लेकर रवाना हो गई। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी। सांगड़ में SSP ऑफिस के सामने शहीद अफजल के वरसा समाजी रहनुमाओं का कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर धरना। वरसा मोहम्मद बख्श, वालिदा जब्बार खोसू, असद खोसू, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को बेगुनाह बेदर्दी से शहीद किया गया। पुलिस ने कराए के कातिलों को गिरफ्तार करके कहा कि इसके कातिल हैं। इसके मोबाइल फोन पर पुलिस अफसरान को तमाम नंबर बताएं। 2 माह गुजारने के बावजूद इसके पुलिस के असल कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उन्होंने SSP सांगड़ से मुतालबा किया कि अफजल के असल कातिलों को गिरफ्तार करके फांसी दी जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी। 12 साला रायचंद वल्दराय मलभाट पुरस्कार तौर पर गुम्माह ने बताया कि मेरा बेटा कपास की चनाई के लिए गया, एक मां लापता है, तलाश करने में मदद की जाए। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, खुदारा एक माँ की इल्तिजा है, दुखियारी माँ की मदद की जाए। सरगोदा CBS महकमे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जफर महमूद ने अपने इलाके को साफ सुथरा और मॉडल एरिया बनाने के लिए मुहिम चलाकर मिसाल रकम कर दी। सैयद ऑन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जफर महमूद ऐवान ने खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाकर हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। इलाके के मकीनों ने मेंबरान कैंटोनमेंट समेत CO कैंट सरगोदा की इस काविश को सराहा। सियालकोट थाना रंगपुरा पुलिस की कार्रवाई। मशहूर मुकदमा कत्ल में मतलूब 4 मुश्तहार मुलजिमान कराची से गिरफ्तार। सियालकोट में 7 माह कबल थाना रंगपुरा के इलाका मोहल्ला समनाबाद में शहरी सद्दाम हुसैन को मुलजिमान अब्दुल हाशिम, असगर खान, अकबर खान, नजीब अहमद ने मामूली रंजिश पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और फरार हो गए थे। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कातिल में मुलव्विस मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए SHO थाना रंगपुरा सब इंस्पेक्टर कैसर बशीर को खुसूसी टास्क दिया। SHO थाना रंगपुरा ने अपनी टीम की हमरा दिन रात कोशिश करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत को बरोए कार लाते हुए कराची के इलाके को रंगील यारी और ठट्टा हैदराबाद में कार्रवाई की और मुकदमा कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान इश्तिहारी अब्दुल हाशिम, असगर, अकबर, नजीब अहमद को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की बाबत मुलजिमान से तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। मुद्दई खानदान ने मुलजिमान की गिरफ्तारी पर सियालकोट पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए।
शहदादपुर रिपोर्ट राना नदीम सलीम सकरंड से लापता होने वाले राजपूत बरादरी के नौजवान राना अनवर अली की बाजियाबी के लिए राजपूत बरादरी की समाजी तंजीम राजपूत नजरियाती संगत की जानिब से प्रेस क्लब शहदादपुर के सामने मुजाहिरा एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत राजपूत नजरियाती संगत के मरकजी चेयरमैन राना नदीम सलीम, राना खालिद परवेज, राना मोहम्मद यूनुस, राना बाबर अली समेत सिविल सोसाइटी के दीगर रहनुमा कर रहे थे। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए राजपूत नजरियाती संगत के रहनुमा राना खालिद परवेज ने कहा कि 5 दिन पहले अनवर बैंक से रकम निकलवाने गया था, अब तक लापता है। उनका कहना था कि हम आईजी पंजाब से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। हम राजपूत नजरियाती संगत की जानिब से आईजी सिंध, डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद समेत बाला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि राना मोहम्मद अनवर को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाने के लिए इकदाम उठाए जाएं ताकि कानून का बोलबाला हो सके। अब रुख करेंगे शेखुपुरा का। क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद, जिसमें ज़िला भर के सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा समेत सैकड़ों तलबा और तालिबात ने शिरकत की। शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम में मुनाकिद होने वाले सालाना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा, सीईओ एजुकेशन शेखुपुरा समेत ज़िला भर के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और कसीर तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर नग़मे, कौमी तराने और घोड़ा नाच समेत बच्चों के जानिब परेड करने का डेमो भी पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी तरबियत के लिए अहम इक़दाम है। मज़ीद उन्होंने कहा कि ज़िला भर में स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कंडरी से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। गुज़श्ता 2 माह में जिला उमरकोट पुलिस की ज़बरदस्त कारकर्दगी आईजी पुलिस सिंध रफ़त मुख्तार, टीआईजी पुलिस मीरपुर खास तनवीर आलम ओडू की जानिब से दी गई हिदायत पर एसएसपी उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा ने पूरे जिला उमरकोट में तमाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जराइम पेशा अफराद, रूपोश इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा। एसएसपी उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक का पीरज़ादा का बतौर एसएसपी उमरकोट चार्ज संभालने से अब तक गुज़श्ता 2 माह में मजमूई तौर पर नारकोटिक्स, गुटखा मावा, आर्म्स एक्ट जबकि गैमलिंग एक्ट, पोस्ट इश्तिहारी मुल्ज़िमान से 368 से ज़ायद मुकदमात में 400 के करीब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, माल मसरूका बरामद किया। जबकि मंदरजा वाला मज़कूरा कार्रवाइयों के अलावा सूद पर कर्जा देने वाले सूदखोरों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पुस्तही ख़वातीन की रकम नाजायज़ कटौती करने वाले 14 डिवाइस होल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मनशियात नारकोटिक्स के 112 मुकदमात दर्ज किए गए, 120 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 9441 लीटर देसी शराब बरामद की गई, 234 विस्की शराब की बोतलें बरामद, 7 किलो 860 ग्राम चर्स बरामद, 244 ग्राम हेरोइन बरामद, 99 ग्राम क्रिस्टल बरामद की गई, 169 ग्राम आइस बरामद की गई, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए। इसके अलावा 210 छालिया के बैग बरामद, 165 बैग तंबाकू पत्ती के बरामद, 115 बैग गत्ते के बरामद, जबकि 51 चूने के बैग बरामद, 17 गुटके से भरे लोहे के टब और 9 बड़े ड्रम बरामद किए, जबकि 89 पैकिंग पेपर बैग और 80 पैकिंग शॉपर के बैग बरामद किए, जबकि 11 आर्म्स एक्ट के मुकदमात दर्ज, बगैर लाइसेंस 10 पिस्टल, 1 राइफल, 40 गोलियां बरामद, 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, गैमलिंग के 2 मुकदमात दर्ज, 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, संगीन नौयत के एटीए के मुकदमात में 60 इश्तिहारी मुल्ज़िमान जबकि 85 रूपोश मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। सराय आलमगीर से नासिर महमूद की रिपोर्ट देखिए। गुजरात पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर की कार्रवाई डकैती की वारदातों में मतलूब बैनुल ज़िलाई गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार, 5 तोला तलाई ज़ेवरात, 4,15,000 रुपये नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। तफसीलात के मुताबिक 27 सितंबर 2023 को एयरपोर्ट से आने वाली ओवरसीज फैमिली को 4 मुसल्लह अफराद ने पब्बी के मुकाम पर रोककर नकदी और तलाई ज़ेवरात छीन लिए थे। डीपीओ गुजरात सैयद असद मजहर ने इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सराय आलमगीर मुदस्सर इकबाल की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना सदर सराय आलमगीर इंस्पेक्टर अदनान शहजाद और दीगर पुलिस जवानों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिन्होंने पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डकैती में मुलव्विस गैंग के 2 कारिंदे ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान में अब्दुल मुकीत, मोहम्मद बिलाल शामिल। दौरान इंट्रोगेशन मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि एयरपोर्ट से आने वाली फैमिलीज का पीछा करते और लूट मार करते थे, जिनके कब्जा से 5 तोला तलाई ज़ेवरात, 4,15,000 रुपये नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 2 पिस्टल, 30 बोर बरामद। मुल्ज़िमान की मजीद इंट्रोगेशन जारी है।
नारोवाल मरकजी जमेत अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर तमाम 22वें सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ज़िला अमीर हाफिज़ अब्दुल हमीद बट ने की। इस मौके पर इस्लामी नसरियाती कौंसिल के मेंबर राना शफी खान पसरोरी ने खिताब करते हुए कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की बुनियाद है। हमारा जीना और मरना सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात मुस्तफ़ा के लिए है। उन्होंने इसराइल और इसके हवारियों की जानिब से फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, इसकी मज़म्मत करते हुए कहा और पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक के लीडर्स रहनुमाओं से अपील की है फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले जुल्म तशद्दुद के खिलाफ उठ खड़े हों। इन हालात में हुकूमत पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान के इदारे उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए लीडिंग रोल अदा करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर एहसन इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का अमल इंसानी नहीं बल्कि ये खुदाई अमल है। जबकि उनका मज़ीद कहना था कि इसराइल और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए हमें इल्म की ताकत की तरफ आना होगा। बदकिस्मती से मुसलमान इल्म की दौड़ में पीछे रह गए हैं। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमें आगे बढ़कर अपने मुसलमान भाइयों का साथ देना होगा। इसके अलावा उनका कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुक़द्दस मिशन की तरवीज इशात करने वाले रहमत खुदाबंदी के हसूल और शिफ़ात मोहम्मदी के अव्वलीन मुस्तहिक़ हैं। इक़्तिदार की राहदारियों में मौजूद इस्लाम व मुल्क दुश्मन अनासिर और कादियानी नवास लॉबियाँ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जैसे मुक़द्दस फ़रीज़े को मुतनासिब बनाने में मसरूफ़ हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले और कादियानियों को प्रमोट करने वाले इस्लाम और मुल्क के गद्दार हैं। खबर दें आपको, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम मलिक की जानिब से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात हुई है। मुल्क के अंदर इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है। हर माशरे में इख्तलाफात और इत्तफाक भी होता है, लेकिन इख्तलाफी राय के आदाब भी होते हैं। हमें पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में भी माजी की बातें भुलाने का कहा। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड का हक हासिल है। 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ना चाहिए। रावलपिंडी से आपको खबर दें, जीबी रोड समा के करीब 22 नौजवानों का राहगीर पर छुरियों से हमला। 20 साला नौजवान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौजवान के बाजू, गर्दन और चेहरे पर छुरियों के वार से गहरे भी जख्म आए हैं। जख्मी होने वाले नौजवान की शिनाख्त उस्मान के नाम से हुई है। सियालकोट कश्मीर रोड पर वाक़या मशहूर निजी होटल पर थाना मुरादपुर पुलिस का अरसा दराज से मसाज सेंटर की आड़ में चलने वाले कहबा खाना पर छापा। मैनेजर समेत 5 मर्द और 5 खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट पुलिस थाना मुरादपुर ने निजी होटल में मसाज सेंटर की आड़ में चलने वाले कबाखाने में खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है और खसूसी रेडिंग पार्टी तश्कील देकर होटल पर छापा मारकर मौका से खातून और मर्दों को नाजेबा हालत में गिरफ्तार कर लिया। SHO मियां अब्दुल रज़ाक का कहना था कि अपने इलाके में ऐसे किसी भी गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी।